Alrighty, now this lecture is being recorded. Um, Today we are going to talk about the task one of IELTS writing module. Task one is different for both IELTS academic or general students, right? First of all, we will talk about what is task one for IELTS academic students, right? So be attentive, everyone. In the task one for academic students, there will be an image, right? An image, or maybe there can be two images. For example, the graph you can see on the screen. This is a bar chart or a bar graph, and one shows the bars that are only green and the other one shows blue and red combined, right? So this is a task when you have to describe this image. अब इस को आपने डिस्क्राइब करना है और कीप इन माइंड कि आपने फॉर्मेट को जरूर कंसिडर करते हुए लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने पास है जो डिटेल आप लिखें। देखिए, डिस्क्राइब आपने करना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको, खुद से डिटेल ऐड नहीं करनी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है टास्क वन में। ठीक है, नाउ यू कैन सी these are the age groups, right? Age groups for career, for interest, and these are the number of candidates. ठीक है, अच्छा जी, 70 एज है ये पर्सन। हाँ ठीक है जी, स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा देखिए, जो भी हो, ये तो आपको जब पेपर में आपके टॉपिक आएगा ना, तो देर विल बी डिफरेंट थिंग्स, मे बी यहाँ पे परसेंटेजेस हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसको अंडरस्टैंड करके अटेम्प्ट करना। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऐसे इसकी कैसे करनी है। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स, ना 3 से नीचे हो या ना 4 से ज्यादा हो। ठीक है, और 3, let's talk about if you write 3 paragraphs then what would be the format. ठीक है, अच्छा पहली चीज, introduction. The first paragraph is always the introduction, and in the introduction of task 1 you only and only paraphrase the given task 1 statement. Yeah, that's it. अपने given question को, for example, this is your task 1, the charts below. अच्छा, जब आप पैराफ्रेज करेंगे और लिखेंगे इसको, make sure below या above कुछ भी ना लिखें. Why? Because you are writing on the paper or maybe on if you are attempting computer based test, then on the screen. तो आपके आंसर के नीचे या ऊपर कोई पिक्चर नहीं होती, right? So do not write below or above. Simply charts की जगह use a different word, and which words you have to use, I will share a link with you which will tell you the common vocabulary words which you can use in different uh, task one answers. ठीक है, the charts will show the main reasons for study among students of different age groups, right? Or students of different ages. ठीक है, and the amount of support and the amount of help they, ठीक है, help या support या cooperation they received. You will use synonyms and you will paraphrase the given statement. Paraphrase mean क्या होता है? Writing the question in your own words. That's it. ये आपका क्या है टास्क, ये आपका क्या है, पैराग्राफ 1 डन. ओके, नाउ द सेकंड पैराग्राफ इज कि गिवन जो भी पिक्चर है या पिक्चर्स हैं, आप उनको उनकी ब्रीफ समरी लिखेंगे। ठीक है, ब्रीफ समरी से मुराद क्या है? 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर, डिटेल नहीं देनी। मैंने क्या कहा है? 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर जो मेन फीचर्स हैं आपके गिवन इमेजेस के, वो डिस्क्राइब करना है। एंड योर समरी शुड बिगिन विद द लिंकिंग वर्ड ओवरऑल, राइट? OVERALL, comma, and so and so on. Overall, and within 3 to 4 sentences you will summarize the given images. ठीक है, then you have to describe. अब describe आपने करना है सीक्वेंस वाइज, जो जो डाटा आपके सामने मौजूद है, राइट? अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप जस्ट 1 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं और 2 में भी कर सकते हैं। मे बी इफ देयर आर 2 पिक्चर्स देन मे बी यू कुड डिस्क्राइब दिस 1 इन 3rd पैराग्राफ। ठीक है, यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड समरी, 3rd पैराग्राफ ये फर्स्ट इमेज की डिस्क्रिप्शन, एंड 4th पैराग्राफ इस इमेज की description, right? And if you want, you can combine both of them and write in just 1 paragraph, right? This is about the description. You don't have to write your opinion, right? Only and only follow what is given. That's it. आपके पास 20 minutes होते हैं task 1 के लिए, and I use and I say every single time that you don't have even 20 minutes. You have only 15 minutes. You have 5 minutes to recheck your work. ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है. Now this is a PDF which I'm showing you. It contains more than 50 task 1 samples with their answers, right? Now you don't have to follow this pattern. You have to read the answers just to learn
कि डिफरेंट इमेजेस की डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है और इस स्टूडेंट को बैंड स्कोर 8 मिला है, वाई 8 रीजंस नीचे गिवन है। देन लो जी, आर्ट्स ग्राफ नंबर 2 आ गया, क्या है जी, दिस इज द लाइन ग्राफ अलोंग विद अ टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप रीड करेंगे और इससे सीखेंगे, ठीक है। दिस इज द वे टू लर्न। और फिर उसके बाद जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा, फिर ऑब्वियसली आपने ये फॉर्मेट भी यूज़ करना है और वोकैबुलरी भी यही वाली यूज़ करनी है, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ये है जी टास्क 1 हमारा, इमेज डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। नाउ आई वुड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टास्क 1 ऑफ आर्ट्स एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड देन आई वुड स्टार्ट आर्ट्स जनरल, ठीक है जी। प्लीज पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी आमना क्लियर है, आपको समझ आया? फरहान आप बताएं। जी सर, मुझे क्लियर है। ठीक हो गया जी। आमना आप बताएं। ओ सॉरी, समा आप, ओ सॉरी फरहान आप बताएं। ठीक है जी, फरहान ओके हो गया। एक और स्टूडेंट बता दो और फिर हम आगे चलें। नोमान आप बताएं। सर इसमें आप जो बता रहे थे ग्राफ के रिलेटेड, जो डिस्क्रिप्शन ग्राफ की बयान करनी है, मतलब हम्म, ग्राफ में अगर हम्म। उसमें जो 60% है उसका जो इस एज के हिसाब से दिया हुआ है, वो उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है। इसमें ओपिनियन का भी कोई ऐसे होता है या नहीं नहीं, कोई ओपिनियन नहीं वाला होता? चक्कर नहीं है। देखिए मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि आपने ओपिनियन लिखनी है, ठीक है। जस्ट पैराफ्रेज, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ओवरऑल वर्ड के साथ स्टार्ट करें और 3 to 4 सेंटेंसेस में समरी लिखें, ये सेकंड पैराग्राफ है। एंड थर्ड पैराग्राफ इज द डिस्क्रिप्शन। नाउ यू कैन write the description in just third paragraph or maybe third and fourth. और याद रखें, you don't have to write more than 200 words, right? Minimum requirement is 150 words. Task 1 चाहे आप आर्ट्स एकेडमिक है या जनरल है, ओनली एंड ओनली यू हैव टू राइट मिनिमम 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में से देखें, अगर आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो 20 वर्ड्स के आसपास तो वो भी हो जाता है, 20 या 30, ठीक है। फिर जब ब्रीफ समरी आप लिखेंगे 3 to 4 सेंटेंसेस की, तो 30 35 या मे बी 40 वर्ड्स तो वो हो जाएंगे। तो 40 + 20 ऑलमोस्ट 60 तो यही हो गए। नाउ ओनली एंड ओनली यू हैव टू राइट ऑन अराउंड 100 और मे बी 120 वर्ड्स, और आप 150 वर्ड्स के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। मेक श्योर करना है कि ये ना हो कितना ज़्यादा लिख दें कि वर्ड्स ही 200+ हो जाए, ना रिक्वायरमेंट है ना इसके मार्क्स हैं, राइट। यू हैव टू ओनली फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, फोकस ऑन द क्वालिटी, ठीक है। समझ आ गई है जी? जी नमान। जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया जी। जैनब। सुहेल अनवर। आगे। आवाज़ नहीं आई जी सुहेल आपकी। जी जी सर, समझ आ गई है। ठीक हो गया, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन जी। जैनब आप भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी आ वालेकुम। गई है। डन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइल्स जनरल, ठीक। जो लोग वर्क वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आइल्स जनरल करते हैं, ठीक है। एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा वाले करते हैं, ठीक। नाउ आई वुड, अब एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी देर ग्रुप में देखें क्या चीज़ें पोस्ट हुई हुई हैं, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया कि कौन सा डाटा आइल्स एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स के लिए और कौन सा जनरल वालों के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टास्क 1 ऑफ जनरल स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्या करना होता है जी? आपने लेटर लिखना होता है, ठीक है। यू हैव टू राइट अ लेटर एंड इन द लेटर दे आस्क यू व्हाट यू हैव टू राइट। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन 1 दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज अबाउट द अकोमोडेशन, ठीक है। अब ये अकोमोडेशन क्या है? यू हैव बीन ऑफर्ड अ प्लेस एट अ यूनिवर्सिटी एंड विश टू बी फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन, राइट अ लेटर। लेटर लिखना किसको? अकोमोडेशन ऑफिसर को, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या जी? द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, some details about yourself, any special requirements you may have, and any other relevant information। ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं ना, आपने इन्हीं तीनों पॉइंट्स को एक्सपेंड करके 3 पैराग्राफ लिखने हैं, जस्ट लाइक आपको ये लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल वेटेज, इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ। अब इक्वल का मतलब ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर है कि फर्स्ट में 50 थे तो उसमें भी 50 हो। इट मीन्स के 50 के आसपास वर्ड्स हों तीनों के, ये नहीं कि पहले में सिर्फ 20 और दूसरे में 70 वर्ड्स हों। This is not a balanced paragraph. They both will not be
बैलेंस्ड, ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस, ये याद रखें इस चीज़ को। और तीनों पैराग्राफ्स में अगर आप 60 वर्ड्स भी लिखे तो 180 तक आप पहुंच जाते हैं। दैट्स इट। ये टास्क 1 होता है आपका। नाउ दिस इज अ पीडीएफ दैट आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। द मोर यू विल रीड द मोर यू विल कम टू नो हाउ टू राइट द लेटर, एंड ऑब्वियसली आपको दूसरों के आइडियाज मिलेंगे, वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे। यू विल हैव टू कम कॉपी ऑल ऑफ देम, ठीक है, इन योर राइटिंग। अब आप देख सकते हैं जी यहाँ पे आपके इसी पेज के एंड पे एक और राइटिंग सेकंड लेटर शुरू शुरू हो गया है और फिर उसका आंसर है, एंड सो ऑन, राइट। नाउ द लास्ट थिंग, लेटर में दो चीज़ें होती हैं। लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर्स और एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल कंपनी के किसी कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं एंड यू डोंट नो, माइक जब मैं कहूँगा तब म्यूट अनम्यूट करना है जी आपने, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा साउंड की वजह से बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। मैं बता रहा था जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल भी होता है, लेकिन वो कह लें एक मिक्स चीज़ है, उसको भी फॉर्मल ही लेके चलें, ठीक है, टू कीप इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फॉर्मल क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में अप्लाई करना है एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द मैनेजर और आस्किंग अबाउट समथिंग, ये क्या है जी, ऑब्वियसली आप फॉर्मल राइटिंग यूज़ करेंगे, फॉर्मल बातचीत करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो फ्रेंड को अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी चीज़ की इनविटेशन या इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो देखिए फ्रेंड को तो इनफॉर्मल वे में लिखते हैं, सही है ना। देयर आर सम थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। सिर्फ वोकेबलरी के फर्क पे आपके जो क्या कहते हैं लेटर है उसकी टोन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब फॉर्मल में आप क्या यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ज्यादातर, आई यू ही में, लेकिन इनफॉर्मल में आप ऐसे नहीं बात करते, आप एक एकेडमिक टर्म्स में उसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर को लिख रहे हैं तो आपको उसको बार बार आप यू नहीं कहेंगे, ठीक है, इट इज रिक्वेस्टेड, इस तरह करके बात करेंगे। अभी ये बताता हूँ आगे किस तरह होती है, इसके एग्जांपल देता हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्टनेस, ये भी आपको पढ़ के पता चल गया। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, इफ यू हैव कमांड ऑन दिस देन मस्ट फोकस ऑन दिस सेंटेंसेस, इफ नॉट तो फिर इसको बैंड 6.5 के लिए ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैंड 7 अगर आपका टारगेट है तो यू मस्ट हैव टू राइट दिस, ठीक है। फिर अच्छा, मॉडल वर्ब्स, दीज आर द वर्ब्स, कैन और कुड एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मल लिख रहे होंगे ना तो कुड यूज करना है। कैन होता है जिस टाइम आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, यानी इनफॉर्मल ये है जी, इनफॉर्मल, सॉरी ये मैं पहले आपको इधर यहाँ पे मैं गलत बता दिया, इनफॉर्मल ये है, ठीक है, जहाँ पे आप यूज करते हैं। देखो समझ लो कि आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है। अब आप उसको यू करके बुलाएंगे, आप उसको नाम लेके भी बुला सकते हैं, सो ऑन, कैन बी विल बी। लेकिन जब फॉर्मल लिखेंगे यानी उसके लिए कहीं किसी मैनेजर को लिख रहे हैं तो फिर कैन की जगह कुड और विल की जगह वुड, ये याद रखिएगा। वर्ड चॉइस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एकेडमिक टाइप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड। परचेज की जगह बाय अगर आप लिखेंगे तो बाय थोड़ा सा क्या है, इनफॉर्मल। पिकअप का मतलब क्या है, ये भी इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, यानी इनफॉर्मल का मतलब जो ज्यादातर ज्यादा तमीज वाला लफ्ज ना हो, ये कह लें, आसान लफ्जों में समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सो ऑन, दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। और बाकी आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, जब आप सैम्पल आंसर्स रीड करेंगे, जो पीडीएफ मैंने सैम्पल आंसर्स वाली पढ़ी है। लास्ट थिंग एंड वी विल बी डन, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम, और अगर आई कॉमा एम लिख दें, एम, दोनों ठीक है, बट अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो आई एम पूरा लिखेंगे, डू नॉट पूरा लिखेंगे, लेकिन अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सारे पूरे पूरे लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स, डजंट, डोंट। अब आपको समझ आ गई होगी जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो आप क्या कहते हैं वर्डिंग थोड़ी सी वोकेबलरी की चेंज करती है ना, यही मेन रोल प्ले करती है। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दो हैं जी, एक मॉडल वर्ब्स, फॉर्मल में कुड वुड और इनफॉर्मल में कैन एंड विल,
सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये वाला है, कॉन्ट्रैक्शंस वाला जो आपको मैंने बता दिया। आई एम पूरा लिखें या आम लिखें, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी पीडीएफ फाइल मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दी है। ठीक है, आप लोगों के लिए कि आप इसको रीड करेंगे और जितना हो सके पढ़ के फायदा उठाएंगे। नाउ द क्वेश्चन टाइम अगेन। These were the instructions for IELTS general students, right? जी पूछे किसी का कोई क्वेश्चन अबाउट दिस। जी उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे समझ आ गई है, सिंपल है, वेरी सिंपल। सिर्फ मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये जो हम एड्रेस लिख रहे होते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में हम बच्चों को क्लास में टीच करते हैं, तो क्या उसी पैटर्न पे ये भी होगा? ना 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 ना, ये चीज नहीं। देखें, फॉर्मल। no no not at all, they write the instruction that you should write, you should start your letter। एक सेकंड, आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि किस तरह रियल टेस्ट में आपका टॉपिक होता है। ठीक है, चलो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, अभी सामने मेरे पास नहीं है। लेकिन ये देखें, आप अगर आपके जो वो होगा ना लेट एड्रेस वगैरह, वो कुछ भी आपने मेंशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डियर से, मतलब डियर मैनेजर से शुरू कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जी जी। ये फॉर्मल लेटर है और डियर से आपके वर्ड्स काउंट होना शुरू होते हैं। मतलब वर्ड तो आई एम राइटिंग यहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन डियर से ऊपर जो एड्रेस है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक हो गया? थैंक यू। और किसी का भी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पूछी नहीं किसी ने मेरे से, राइट, के फॉर्मल और इनफॉर्मल में ना एक छोटा सा डिफरेंस और भी होता है। देखें, इनफॉर्मल आसान लफ्जों में ये भी समझें, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, तो यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, राइट, फर्स्ट नेम पता है, तो आप उसको डियर जॉन कहोगे या डियर नौमान, डियर जो भी आपका आप जिसको लिख रहे हो उसका फर्स्ट नेम है। ये इनफॉर्मल है। और फॉर्मल क्या है, अक्सर जब आप मैनेजर को लिख रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता मैनेजर का नाम क्या है। ठीक है, ऐसा ही है ना। और अगर आप अपने जी लैंडलॉर्ड को लिख रहे हैं, मतलब जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं उसके मालिक को लिख रहे हैं, तो देखिए मालिक का नाम आपको पता होगा, लेकिन फिर भी वो है फॉर्मली, उसको आप दोस्त नहीं बना सकते अपना, या दोस्त समझ के नहीं लिख सकते। तो इसलिए उसका जब नाम लिखेंगे तो फुल नेम लिखें या मिस्टर करके लिखें, यानी नोमान ज़िया है तो मिस्टर ज़िया होगा। और अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे होंगे तो डायरेक्ट कहेंगे डियर नोमान, सिंपल। ठीक है, और समटाइम्स अगर नाम ना पता हो तो फिर कंफर्म होता है कि वो तो पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर है। समझ आ गई जी आपको ये बात? जी, थैंक यू। ठीक हो सर गया। बस ये हमको हमको क्वेश्चन देख के खुद से पता चल जाएगा कि हमको ये फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने खुद जज करना है, वो पेपर में लिखा नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो, अब ये देखो मेरे पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, यू हैव रिसेंटली मूव टू अ डिफरेंट हाउस, राइट अ लेटर टू एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड। फ्रेंड मतलब इनफॉर्मल। ठीक है, अब इधर आओ, अगला जी। अगला, you and your family are living in a rented accommodation in an English speaking country. You are not satisfied with the condition of the same of some of the furniture. Write a letter to your landlord. अब ये क्या है, ये फॉर्मल स्टाइल में ही जाएगा। ठीक है, फॉर्मल स्टाइल में ही लिखा जाएगा, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपने नहीं लिखनी। अब देखो क्या है, डियर मिस्टर स्मिथ, मतलब नाम तो आपको पता है, मे बी जॉन स्मिथ उसका नाम हो तो मिस्टर स्मिथ, मिस्टर यूज होता है लास्ट नेम के साथ। मैंने पहले एग्जांपल आपको दी, मेरा नाम अगर नौमान से है, ठीक है, अगर नहीं लाजमी रियलिटी में मेरा नाम नौमान ज़िया है तो मैं क्या लिखूंगा, मिस्टर ज़िया, राइट। ये समझ आ गई जी आपको? फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है, योर जी। रेस्टोरेंट, ये भी एक्सक्यूज मी लैंडलॉर्ड है सर। ये। जी, और कोई क्वेश्चन? हेलो। हेलो जी उस्मा, सर। उस्मा क्वेश्चन पूछें। सर इसमें भी वर्ड्स की लिमिटेशन है और पैराग्राफ्स की के सेम, मतलब? तीन पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वर्ड्स लिमिट वही है सेम, 150 वर्ड्स से कम नहीं होने चाहिए, 150 से ऊपर हो बस 170 180, दैट्स इट। ओके।
ठीक है, ज्यादा नहीं लिखने, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होंगे, सो बी केयरफुल। ओके ओके सर। ठीक है, और मोहसिन क्वेश्चन पूछे, मोहसिन जहूर। सर ये अपना मैनेजर की जगह हम सर भी लिख सकते हैं, डियर सर? नहीं नहीं नहीं, जिसके अच्छा लिए लिख रहे हो वही लिखना। ठीक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में और लिखा ये होगा डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, तो ये पहले टास्क में जो हमें तो जनरल वालों को ये लेटर ही लिखना है ना? जनरल वालों को देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स जनरल कौन लोग करते हैं, जो वर्क या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने लेटर लिखना है टास्क 1 में। जो स्टूडेंट वीजा वाले हैं, आर्ट्स एकेडमिक वाले, उन्होंने इमेज डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जी जी ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर कल का जो आपका लेक्चर था वो रिकॉर्डेड है आपके पास, जो जी जी, कल अवेलेबल आपने है करवाया था? जी, इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री वो होऊंगा जरा वो मैं अपलोड कर अपलोड देगा, कर क्योंकि एक जी जी जरूर। ठीक, वो करवा कर देगा। जी जी, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा इंशाल्लाह। सर कल कल क्लास होगी कल या छुट्टी है कल? नहीं नहीं नहीं, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी, अलबत्ता हाँ आप लोगों का राइटिंग का टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, मे बी अच्छा अच्छा मैं देखूंगा ना, ठीक मैं है फीडबैक ले लूंगा एक दो स्टूडेंट से पूछ के कि अगर तैयारी हो गई राइटिंग की तो कल ले लूंगा, नहीं तो ईद के फौरन बाद टेस्ट हो जाएगा आपका राइटिंग का ग्रैंड टेस्ट। ठीक है ठीक है। ईद ठीक है। हॉलीडे स्टार्ट हो गया ना, फिर ईद के बाद ही कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, ईद के बाद कर लेते हैं, ताकि ईद के डेज में आपके पास जो टाइम हो उसमें आप प्रिपेयर भी कर सकें। सर ये जो अपना जो टास्क 2 में जो ऐसे लिखने थे, ये आपने मेरे ख्याल से 10 ऐसे पोस्ट किए थे ना? हम्म। तो इनको इनको आप कह रहे थे कि इनको सेम जो है ना अपनी कॉपी पे उस तरह सेम ही लिखना है, प्रैक्टिस करनी है उस तरह लिख के। तो अभी कोई यानी कि आप कोई हमें ऐसे भी देंगे, यानी कि अनसीन ऐसे जो हमने खुद से भी लिखना हो वो प्रैक्टिस के टेस्ट लिए? में वो टेस्ट में दूंगा। ठीक है, टेस्ट आपका अच्छा अनसीन अच्छा टॉपिक के साथ होगा और वहाँ पे आपने अपनी स्किल्स ना कंप्लीटली शो करके बतानी है। अलबत्ता जी कल मैं 10 सैंपल्स ऐसे के और भी पोस्ट कर दूंगा, मींस आपके पास एक्स्ट्रा लर्निंग ठीक है मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आप तैयारी करेंगे। जी ठीक है। ठीक हो गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुहेल। सुहेल आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। ठीक है, चले जी, आई होप सो आपके कोई क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने आंसर उनके कर दिए हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस आएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ते और प्रिपरेशन करते वक्त जो आपके क्वेश्चंस होंगे, यू शुड नोट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन और है तो वही पूछ लें, फिर नहीं तो हम क्लास एंड करें। सनिया, आप कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं? एक्सक्यूज मी जी उस्मा। सर, ये ट्यूसडे को जो आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर था ना आइल्स जनरल वालों के लिए, प्लीज वो भी शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है। सर थैंक ये यू। सर ये अपना ये जो हमें अभी इसमें छुट्टियां वीकेंड की अपना ईद हॉलीडे था जो, ये इसमें सिर्फ हमने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ? राइटिंग की तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, देखें मेहनत जी तो जी आपने करनी है ना, आपके पास टाइम है, जी आप जी लिसनिंग भी डेली एक टेस्ट करें, रीडिंग भी करें। आई वुड रिकमेंड कि लिसनिंग जी डेली जी 2 होने चाहिए, रीडिंग 1 होना चाहिए, राइटिंग का एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए, और एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स किसी भी एनोनिमस पर्सन या मे बी योर फ्रॉम योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, किसी के साथ भी आपको डिस्कशन जरूर करनी चाहिए, जी ताकि जी जितनी ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं राइटिंग अगर ठीक है। करवा रहा हूँ तो सिर्फ राइटिंग ही करना है। ठीक है, जब आपके पास टाइम हो तो बाकी मॉड्यूल्स सर भी आपने लाजमी ये करने हैं। सर जी, बुक का बता दें, बुक कौन सी से प्रैक्टिस करें जिस फिर, मर्जी से 11 टू करें, नो 16 में प्रॉब्लम। से? 11 टू अच्छा 16 ठीक आर द लेटेस्ट वन। पहले इन 6 को जी मुकम्मल जी करें, फिर उसके बाद बुक 10 और बिलो 10 वाली करनी है। जी ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? पहले 11 वाली पढ़े आज, फिर 11 टू 16 11 पहले 12। करनी है। ये ठीक है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 टू 16 पहले करनी है। वाई? बिकॉज 16th इज द लेटेस्ट वन, राइट? बाद में जब 11 टू 16 आप अटेम्प्ट कर लें, देन 10 एंड बिलो 10 वाली करनी है, बट फॉलो द पैटर्न ऑफ बुक 16 बिकॉज वो लेटेस्ट है। सर लेटेस्ट से क्या मुराद, उसमें कुछ लेटेस्ट पैसेज वर्जन, डिफरेंट है? नो, लेटेस्ट वर्जन, डिफिकल्टी लेवल अप डाउन, पैटर्न थोड़ा चेंज, वो भी 10% सिर्फ, बकाया पुराना ही होता तो जो सर आइल्स बुक 10 होगी वो लेस डिफिकल्ट होगी एज है। कंपेयर टू नहीं, कह नहीं सकते, मे बी आइल्स बुक डिफिकल्ट, 16? मे बी कोई टेस्ट डिफिकल्ट होगी, कुछ आसान होगा, मिक्स होता है, कह नहीं सकते आप ऐसे। सही सही। किसी टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल अप होगा, किसी में डाउन होगा।
जी जी और किसी का कोई क्वेश्चन? Alrighty, I think that we are done. Thank you so much for joining the class. I will share the recording of this lecture in the group at my earliest convenience. Thank you. Allah Hafiz. Relax.